السلام علیکم. میں شیخ محمد سراج الدین، ریسرچ اسکالر، عثمانیہ یونیورسٹی بزم ظہور کی جانب سے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اس سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. میرا موضوع ہے مصطفیٰ حسین کی مزاح نگاری. مصطفیٰ حسین آج اردو کے مقبول ترین مزاح نگار ہیں. بر صغیر میں وہ اپنے نام کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں. وہ مینار نور ہیں، اپنے تحریروں کے ذریعے روشنی بکھیر رہے ہیں. مصطفیٰ حسین نے اپنی تحریروں کے ذریعے مزاح نگار کو بلند کیا. ادبی رجحان سے زیادہ مزاح کو ایک الگ صف یا شعبے کی حیثیت سے منوانے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے ہیں. مصطفیٰ حسین کی کالم نگاری کے دو دور ہیں. پہلا دور 12 اگست 1962 کو ان کا پہلا کالم شائع ہوا، جس کے بعد وہ تقریباً 15 برس تک یہ کالم روزانہ پابندی سے لکھتے رہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ 16-17 برس کے وقفے کے بعد اگست 1993 کو انہی تاریخوں میں وہ دوبارہ کالم نگاری کی طرف متوجہ ہوئے. اس مرتبہ قلمی نام کے بجائے وہ اپنے ہی نام سے میرا کالم کے زیر عنوان روزنامہ سیاست کے لیے 15 اگست 1993 سے ہر ہفتہ اور مسلسل لکھ رہے ہیں. لہو رونے کے بعد کرب و علم کو پوشیدہ رکھ کر اپنے دور اور دوسروں کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرنے کے مزاح رنج و غم اور قابو پانے کا نام ہے. ایک مصرع عرض ہے: برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. مصطفیٰ حسین کے کالموں کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ تازہ ترین موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں. دور حاضر میں اپنے معاشرے میں، سماج میں، عملی زندگی میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس سچائی کو وہ قارئین کے سامنے لانے کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں. جب یہ موضوعات کو قاری پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے تعلق سے یا ہماری زندگی کے تعلق سے یہ موضوع یا ہمارے معاشرے کے تعلق سے جڑا ہوا ہے. یہ جب قاری پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے رنج بھی ہوتا ہے، ملال بھی ہوتا ہے، تھوڑا مزاح بھی آتا ہے، مسکرانے بھی لگتا ہے. مصطفیٰ حسین کی تحریروں میں ایک عجیب طرح سے قاری مانوس ہو جاتے تھے. پڑھتے پڑھتے وہ کبھی نہیں تھکتے ہیں اور انہیں تجسس برقرار رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، لیکن مزاح کے ساتھ اپنے آپ کو وہ محظوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کالم برداشتہ میں بھی ایسے مضامین کی کوئی کمی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش ہے: 21ویں صدی کی دہلیز پہ تالا لگایا جائے، کچھ ذکر ہیلمیٹ کا، ملت میں علم کی قلت، بڑھاپے کا سہارا، ہم 50 برس سے شادی شدہ ہیں. سلطان قابوس کی اردو رتھ یاترا، جارج بش پہ لکھے گئے تینوں مضامین، ہوری کا خط، پریم چند کے نام. مزاح نگاروں کو انصاف چاہیے. جانا شب خون کا اور آنا شمس الرحمن فاروقی کا، اردو کو برتو اور پھینکو، وغیرہ وغیرہ. ان کالموں کی وجہ سے کتنی یادیں، کتنے واقعات محفوظ ہو گئے ہیں. اب سے کئی برسوں کے بعد بھی یہ مضامین پڑھے جائیں گے تو یوں لگے گا کہ صحافی کا قلم مورخ کی یادداشت کا سہارا بن گیا. اب تک ان کے کالموں کا پہلا انتخاب کتابی شکل میں، دوسرا میرا کالم کے نام سے 1999 میں شائع ہوا. دوسرا انتخاب حسن چشتی صاحب نے مصطفیٰ حسین کے منتخب کالموں کے نام سے مرتب کیا، جو 2004 میں شائع ہوا. تیسرا انتخاب کالم برداشتہ بروزن
برداشتہ ہے۔ قارئین و ناظرین کے ذہنوں میں اپنی چھاپ چھوڑنے والی شخصیت، مجھے افسوس کے ساتھ کہتے ہوئے ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کہ آج یہ بر صغیر کی مشہور و معروف شخصیت، مزاح کے بابا آدم کہلانے والی شخصیت، ہندوستان کی مزاح نگاری کی جان و روح آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید آصف علی، ریسرچ اسکالر، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، شکریہ ادا کرتا ہوں بزم ظہور کا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس سیمینار کا انعقاد کیا اور مجھ کو موقع دیا کہ میں اس سیمینار کا حصہ بنوں۔ میرا آج کا عنوان ہے اردو افسانہ، فن اور روایت۔ افسانہ اردو ادب کا وہ فن ہے جو مغربی ادب سے لیا گیا ہے، جہاں افسانہ یعنی بس خیالی کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن اردو افسانہ نگاروں نے مغرب کی اس روایت کو بدل دیا اور اپنے افسانوں میں حقیقت کے واقعات تو نہیں لیکن حقیقت کی عکاسی کی ہے۔ یقیناً یہ افسانے بھی خیالی ہی ہیں، لیکن اردو افسانہ نگاروں نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کی برائیوں کو، جاگیرداروں کے ظلم و ستم کو، خواتین پر ہو رہے ظلم و ستم کو، غریبوں کی زندگی، دیہات کی زندگی، ہندوستان کی آزادی اور تقسیم ہند کے حالات وغیرہ کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ دراصل اردو افسانہ نگاروں نے ہندوستانی ماحول کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، جن میں سب سے بڑا اور اہم نام منشی پریم چند کا ہے، جنہوں نے دیہات کی زندگی کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ سجاد ظہیر، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف احتجاجی طور پر 1932 میں افسانے انگارے لکھا، جو بہت بڑی انقلابی تحریر بن کر سامنے آئی۔ اس کے بعد رومانیت کی جگہ حقیقت نے لے لی اور اس کا اثر دوسرے افسانہ نگار جیسے کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس وغیرہ پر ہوا، اور انہوں نے سماج کے حقائق کو اپنے افسانوں میں قلم بند کیا۔ غریبوں، مزدوروں اور مظلوموں کی حمایت میں افسانے لکھے۔ اس روایت کو دیگر افسانہ نگاروں نے آگے بڑھایا، جن میں اختر حسین رائے پوری، بلونت سنگھ، ہنس راج، حاجرہ مسرور، شکیلہ اختر وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد اردو افسانوں میں سماجی اور سیاسی حالات نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے اکثر افسانہ نگار جیسے قرۃ العین حیدر، ممتاز شیرین، انتظار حسین، کلام حیدری، جیلانی بانو، اقبال متین، واجدہ تبسم، آمنہ ابوالحسن وغیرہ نے آزادی کے بعد ہندوستان کے حالات، تقسیم ہند وغیرہ اور اس وقت کے سیاسی ماحول کو، اس وقت کے شاہی گھرانوں کے حالات کو، امیروں کے غریبوں پر ظلم و ستم کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ اس زمانے کے افسانہ نگار بھی حال کے ہو رہے انسانی مظالم کو، مزدوروں کی بدحالی وغیرہ حالات پر اپنے قلم کا استعمال کرتے ہوئے اس پر افسانے ضرور لکھیں گے اور اس روایت کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔
बज़्म ज़हूर की जानिब से सोशल नेटवर्क के ज़रिए इस सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मैं फरीदा बेगम PhD रिसर्च स्कॉलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है तंज़ो मिज़ाज के फ़रोग़ में ख़वातीन का हिस्सा रिसाला शगुफ़े के हवाले से। रिसाला शगुफ़ा एक महानामा अदबी रिसाला है जिसे 10 नवंबर 1968 में डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने हैदराबाद दक्कन से शाया किया। इस रिसाले को मुस्तफ़ा कमाल ने जिंदा दिलान हैदराबाद के तर्जुमान की हैसियत दी। इब्तिदा में ये रिसाला 1.5 माही था जिसकी कीमत ₹1 थी, जो साल भर में 8 पर्चे शाया करता था, मगर 1973 में इस रिसाले को महानामा में तब्दील कर दिया गया। अवध पंच तंज़ो मिज़ा निगारों के लिए एक प्लेटफॉर्म था, तो शगुफ़ा एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से कई नए लिखने वालों ने तरक्की की आला मंजिलें तय की। इसमें बेशक ख़वातीन की तादाद कम है, लेकिन अवध पंच के लिखने वालों में एक भी खातून तंज़ो मिज़ा निगारों का नाम नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ ख़वातीन की लिटरेसी यानी ख़वानदगी से है। अहदे हाजिर की तंज़ो मिज़ा निगारी में ख़वातीन बामे उरूज पर पहुँच चुकी है। क़ब्ले अज़ी ख़वातीन दूसरी असनाफ़े अदब में अपने कारनामे दिखाकर ख़ुद को मनवा चुकी थी, मगर मिज़ा के मैदान में उन्होंने देर से कदम रखा। ये सवाल हमेशा से किया जाता रहा कि ख़वातीन मिज़ा क्यों नहीं लिखती। इस बारे में लोग अपने अपने अंदाज में राय देते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ख़वातीन में हिस्से मिज़ा कम होता है, लेकिन ये सरासर बेबुनियाद है। हिस्से मिज़ाज का ताल्लुक तजुर्बे और मुशाहिदे से है। तालीम कम हो और कोई अपने घर में मुत्तयिन हो जाए तो जाहिर है इसका मुशाहिदा कम ही होगा। तजुर्बे और मुशाहिदे से ही दुनिया को समझने का मौका मिलता है। जब ये ज़िंदगी में मफूत होंगे तो एहसासात की दुनिया भी महदूद होगी। जो ख़वातीन में तालीम आम हो रही है, जाहिर है इनका हिस्सियाती दायरा भी वसी होता जा रहा है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि शगुफ़े में ख़वातीन मिज़ा निगारों की तख्लीक़ात कम ही शाया हुई है। जब 1968 में शगुफ़े का आगाज़ हुआ तो इब्तिदाई शुमारों में शफ़ीक़ा फ़रहत, सुरूर जमाल, रशीद मौसवी और इस तरह के 2-4 मिज़ा निगार ख़वातीन की तख्लीक़ात शगुफ़े में शाया हुई थी। तंज़ो मिज़ा निगार ख़वातीन में सबसे पहला नाम आसिफ जहाँ का आता है, जो फ़रहतुल्लाह बेग की रिश्तेदार थी। जामिया उस्मानिया की तश्कील के बाद जहाँ बानो नक़वी और ज़ीनत साजिदा ने अपनी तहरीरों के ज़रिए अदब में ऊंचा मुकाम हासिल किया, ये दोनों तंज़ो मिज़ा निगार की हैसियत से भी बेहद मकबूल हुई। शगुफ़े के इब्तिदाई मजलिस मुशावरत में ज़ीनत साजिदा का नाम भी शामिल था। नवंबर 1968 में जब पहला शुमारा शाया हुआ तो कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ हैदराबाद के भारत चंद्र खन्ना और ज़ीनत साजिदा भी मजलिस मुशावरत में शामिल थे, और पहले ही शुमारे में कुत्ते के उन्वान से डॉक्टर रशीद मौसवी का मजमून शाया हुआ था। इससे अंदाज़ा होता है कि शगुफ़े ने अपनी इशाअत के आगाज़ के साथ ही ख़वातीन को अपने रिसाले में अहमियत देते हुए एक खातून को अपने मशावरती कमेटी में शरीक किया और दूसरी खातून की तख्लीक़ात शगुफ़े के इब्तिदाई शुमारों में शामिल रखी। जहाँ बानो नक़वी ज़ीनत साजिदा जामिया उस्मानिया से वाबस्ता थे और इनके शागिर्दों में अदबी सलाहियतें पैदा करने में इन दो ख़वातीन ने अहम हिस्सा अदा किया था। दोनों में मिज़ा की हिस्स तेज़ थी। इसका असर इनके शागिर्दों पर भी पड़ा। चहल चुलबुलापन, शरारतें और लतीफ़ाबाजी उस दौर की तालिबात की खूबियाँ थीं। उनमें लिखने की सलाहियत रखने वाली तालिबात ने हल्के फुल्के मज़ामीन लिखे और बाद में तंज़ो मिज़ा में अपना एक अलग मुकाम बनाया। शगुफ़े के इब्तिदाई लिखने वाली ख़वातीन में डॉक्टर रईक सलाह और डॉक्टर हबीब ज़िया को काफ़ी अहमियत हासिल है। इन दो ख़वातीन ने शगुफ़े के तवस्सी से अपने तख्लीक़ात को क़ारीन तक पहुँचाया। इसके अलावा डॉक्टर रशीद मौसवी, फ़ातिमा आलम अली ख़ान, शफ़ीक़ा फ़रहत, रफ़िया मंज़रुल अमीन, आबिदा महबूब, फ़ातिमा ताज, हलीमा फ़िरदौस, नसीमा तराबुल हसन, प्रोफ़ेसर शमीम अलीम वग़ैरह के मज़ामीन शगुफ़े में वक्तन फ़ौक़तन छपते रहे हैं। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। बज़्म ज़हूर की जानिब से सोशल नेटवर्क के ज़रिए इस सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। मैं तबस्सुम आरा रिसर्च स्कॉलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मेरा मकाले का उन्वान है हैदराबाद में ख़वातीन की इंशाया निगारी। वैसे तो उर्दू अदब अपने आप में कहकशां है और ये असनाफ के सितारे समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक सिंफ है इंशाया निगारी। इंशाया अदब की एक नस्ली सिंफ है। इंशाया एक ऐसी तहरीर का नाम है जिसमें बगैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत निगारी का इजहार होता है। किसी भी मौजू के बारे में जो ख्यालात आते हैं इनको लतीफ़ और खुशगवार अंदाज में बयान करना इंशाया के मफ़हूम में आता है। डॉक्टर जॉनसन ने इंशाया के ताल्लुक से कहा कि ये इंसानी दिमाग की ढीली और बेपरवाह किस्म की उड़ान है। इंशाया निगार अपने मकसद और मौजू के साथ हुस्न इबारत का भी ख्याल रखता है। उसने इंशाया लफ्ज़ी मानों में कुछ बात दिल से पैदा करना इंशाया कहलाता है। इंशाया निगार अपनी बेगहा खुसूसियत की बिना पर अपनी पहचान रखता है। इब्तिदाई से ये शहर ऐसी मुनफरिद तहजीब और सखावत का मरकज़ रहा। बिलखुसूस इस शहर उर्दू ज़बान व अदब की हमेशा ही से सरपरस्ती होती रही। बक़ौल शायर, मैं नाम में ज़िंदगी हूँ, पैगाम में ज़िंदगी हूँ, पूछो पता अदब का जाकर नई शहर से। उर्दू अदब में ख़वातीन अपनी काविशों से नई शहर, पैगाम में ज़िंदगी, रूह हयात के अलावा पुरलुत्फ़ अंदाज से सारे चमन को महकाया। हैदराबाद में कई नामवर ख़वातीन अदीबाएँ हैं, अफ़साना निगार और गैर अफ़साना निगार। मैं इनमें चंद इंशाया निगार ख़वातीन पर तबसरा करूँगी। डॉक्टर ज़ीनत सईदा, मोहतरमा क़मर जमाली, नफीसा खान, प्रोफेसर हबीब ज़िया, मोहतरमा रफ़िया नौशीन, समाजी जहदकार, और मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन। नसीमा तुराबुल हसन हैदराबाद की गुलिस्ता अदब की वो नसीम बहारा है जो अपने कलम से जहन व दिल को मुअत्तर करती हैं और अदबी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया। अदबी शख्सियत अपने आप में एक अंजुमन है। इनके मुख्तलिफ मज़ामीन और दिलचस्प इंशाइयों के मजमूए हैं। इनमें रंग बिरंगी दुनिया में कई रंग, समाज की टेढ़ी लकीरें, यादें, अगर औरत ना होती, जहेज की लानत और अपनी आप बीती के ज़रिए लिखा है मैं और मेरा मैट्रिक का इम्तिहान। यादें रंग बिरंगी दुनिया का पहला इंशाया है। इन्होंने इस शेर से इस इंशाए की शुरुआत की। इस वसअत निगाह में यादों की तितलियाँ और जिक्र ऐसा जैसे झोंके बहार के। वो लिखती हैं कि याद एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें बीती हुई ज़िंदगी को याद करने बैठे तो हम हकीकत की दुनिया से बहुत दूर निकल जाते हैं और हम महू होकर खुशबू महसूस करने लगते हैं। एहसास के सहरा में उतर आती हैं जब धूप, तब अब्र करम बनती हैं, छा जाती हैं यादें। इंशाया मैं और मेरा मैट्रिक का इम्तिहान में मुसन्निफ़ा ने अपनी आप बीती से किस तरह मैट्रिक के इम्तिहान को अहमियत दी है कि नानी ने BA पास होने पर 25 रुपये और मैट्रिक पास होने पर 50 रुपये देती हैं। ज़ाहिर किया है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी मैट्रिक का इम्तिहान है। मोहतरमा तुराबुल हसन ने अपनी तहरीरों में आसान अल्फाज और खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए। बनावट का शायबा तक नहीं। किताब ख़त्म हुई तो ऐसा लगा कि वो लिखती जाए और हम पढ़ते जाएं। ज़बान में ऐसी रवानी है कि लगता है कि ये दरिया बहता ही जाए और हम सैराब होते रहें। अल्लाह ताला इनके कलम में ज़ोर दे और वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहें। डॉक्टर ज़ीनत सईदा के इंशाइयों के आईने में। डॉक्टर ज़ीनत सईदा का ताल्लुक़ सूफ़ी ख़ानदान से था जो ना सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर या शोबे उर्दू के सदर नहीं बल्कि उर्दू दुनिया की नामवर अदीबा थी। वो 1924 ईस्वी में रायचूर में पैदा हुई। डॉक्टर ज़ीनत सईदा को अफ़साना निगार की हैसियत से आला मुक़ाम हासिल है, लेकिन इनके इंशाए भी कीमती असासा है। इन्होंने अपने इंशाइयों में मामूली शीशे को भी मौजू बनाकर पेश किया। इनके इंशाए हैं, अगर अल्लाह मियाँ औरत होते, चाय मीनार पर गिलाफ, बी जमालू, मेरी मुर्गियाँ, का करूँ सिंगार पिया मोरा अंधा वगैरह। इंशाया चाय मीनार पर गिलाफ उन्वान ही से जाहिर है कि किस तरह हम तारीख़ी इमारत के साथ लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ की तारीख़ी इमारतों पर इनकी नज़रिए फ़िक्र का अंदाज़ा होता है कि हम इस तारीख़ी इमारत के साथ लापरवाही कर रहे हैं और इन इमारत की कदर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश की। आज हम फन तामीर की इन शाहकारों इमारतों पर खुरच कर अपना नाम तहरीर करते हैं और इन इमारत को अपनी मिल्कियत तस्वुर करते हैं।
फिर इन्होंने अपने इंशाया में मामूली परिंदे को भी अपने इंशायों का मौजू बनाया। मेरी मुर्गियाँ। इस इंशाया में मुर्गियों से इनका लगाव किस तरह, पालतू जानवरों से इनकी मोहब्बत होती है, जाहिर किया है। इंशाया सोना लावन पी गए, सूना कर गए तो इस इंशाये में सोना और जेवर की अहमियत पर तबसरा किया है। हमारे मुल्क के ख़वातीन, अमीर हो के गरीब, हर किसी को जेवर पहनने की चाहत होती है, श्रृंगार का एक हिस्सा है। बखौल ज़ीनत पाके तो फिर काहे को पिया के कान खाए कि सोना लाओ और जेवर बनवाओ, रोशन आंखें, हंसते लब, तंदुरुस्त जिस्म, फराख पेशानी, यही हुस्न देखने से आंखें ठंडी होती हैं। ज़ीनत तबा के नज़दीक औरत का कुदरती हुस्न ही काफ़ी है देखने वालों की आंखों की ठंडक के लिए, बगैर किसी जेवर के। बहरहाल डॉक्टर ज़ीनत साजिदा ने अपने इन इंशायों में जहाँ ज़िंदगी के अहम मसाइल को पेश किया है, वहीं इनकी तहरीरों में ज़ाहिरी तौर पर आम बोलचाल के अल्फाज दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें गहरा पैगाम और मसाइल की तरफ तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की है। और इनकी तहरीरों में बेतकल्लुफ़ी, बेसाख्ता, शगुफ्ता, संजीदा, पुरअसर, खुलूस व सच्चाई और तंज़ व मज़ाक की शाहकार है। दफ्तर हस्ती में थी ज़री वक्त तेरी हयात, थी सरापे दीन व दुनिया का सबक तेरी हयात। शुक्रिया।